Very good. So, very good. All those who have given the answer. So, average of the given terms will be sum of all terms, sum of all terms divided by number of terms, right? So, how many terms we have? 1, 2, 3, 4, 5. 5 terms we have. And what is the total? Sum of all terms will be 3 plus 2, 5, 5, 5, 10, 10 plus this 21, 10 plus 21, 31 divided by 5 is equal to 5, 6, 32. Remainder is 1, 5, 2 is 10, right? So average of these given terms will be 6.2, right? See, basic of average is sum of all given terms divided by number of terms. Then there can be a question like, not there can be a question, there can be a concept like the sum of all marks of students divided by number of students. So average marks of the classroom, right? Average height of boys, average height of girls, right? Like this, right? Average marks of a particular school, average marks of particular division, right? तो ऐसे बेसिक बेसिक आप ऐसा समझ के ये जो कॉन्सेप्ट है इसको क्लियर कर सकते हो, बहुत बेसिक है, राइट? बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरेजेस. ओके, average is equal to sum of all terms divided by number of terms. That is what we have written, right? अच्छा, यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे लेता हूँ तो एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू सम और टोटल ऑफ टर्म्स. दिस इज वेरी मच वाइडली यूज्ड फॉर्मूला. ये बहुत बार यूज होता है ये फॉर्मूला देन दिस वन, राइट? तो ये भी आप नोट डाउन कर लो. वैसे ये भी फॉर्मूला नोट डाउन, ये मतलब इसका एक्सटेंशन है. क्यूसी एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, और एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स विल बी सम ऑफ ऑल टर्म्स. ओके, सो इसका एवरेज क्या होगा बोलो? इसका एवरेज सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स 4, ये आपका एवरेज आ जाएगा. ठीक है, नाउ let us understand this. Let us understand this. If the average of 81, 93, 99 and x is 87, find x. Now I'll give you two methods to solve this question, right? One is very much conceptual method, and the other one is a shortcut method, right? सीधे shortcut method से within 10 seconds how can we solve this question, right? ये भी करेंगे, और conceptual method से भी we are going to understand. Now, what is given to us? Average of these terms is 87, find x. Now we know average is equal to sum of all terms divided by number of terms, or average into number of terms is equal to sum of all terms, right? Now what we have average as 87. Okay, we have number of terms also. What is number of terms? Number of terms here are 1, 2, 3, 4. We have number of terms at 4. So sum of all terms is actually average into number of terms, which is also equal to sum of these 4 terms. Is this clear? Is this approach clear? बोलो, ये approach clear है सबको कि average into number of terms ये होगा sum of all 4 terms, which is also equal to sum of all these 4 terms, right? So if I multiply this 4, 7, 28, 4, 8, 32 plus 2, 348 is equal to, if I add this 4 plus 9, 3, remainder is 1, 10, carry over is 1, 10, and this, if I take this as 9, 9, 9, 9, 27, 273 plus x, or x is equal to 8 minus 3, 5, and 34 minus 7 is 7. So that x is equal to 75. So this is very much understandable approach. Yes or no? Yes or no? Very much simple this also, right? Hardly 30 seconds will take. Just average into number of terms. जो भी average है 4 terms का into 4 terms है, मतलब ये sum of terms हुआ. Sum of terms can also be calculated by this way.
and so we just solved for x and got our answer. Is this clear, everyone? Bolo, is this method clear? Any query, please ask. I'll recap this, don't worry. But please make sure that it is clear. Okay. इसको लिख लो, अच्छे से लिख लो. ओके अभी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच सॉरी दूसरा मेथड क्या है, शॉर्टकट मेथड समझ लो. शॉर्टकट मेथड क्या होगा देखो, ध्यान दो. ये एवरेज क्या काम करता है देखो, ध्यान दो. कभी भी अगर मैं ऐसा लूं फॉर एग्जांपल 5 + 3 8, 8 प्लस 12 20, 20 + 4 24. What is average of these four terms? What is average of these four terms? We are going to understand one very good approach for solving this question. Right? So we'll understand meaning of average. With the help of this, we'll solve this question. What is the average of these four terms? Tell me. Actual average of these four terms. कितना है? 5 3 8 + 12 20, 20 + 4 24, 24 by 4 terms. Average is 6. Now ये 6 क्या करता है समझ लो. ये जो एक्चुअल एवरेज है ना 6, ये क्या काम करता है ये भी समझ. ये जो 6 जो एवरेज है, ये 4 टर्म्स का एवरेज है. राइट, ये 6 जो एवरेज है एक्चुअल एवरेज, ये 4 टर्म्स का एवरेज है. और वो क्या काम करता है, वो डिफरेंसेस, जो भी डिफरेंसेस है विथ रिस्पेक्ट टू देयर एवरेज, इनको नलिफाई करता है. मतलब जो भी पॉजिटिव निगेटिव डेविएशन है वो जीरो बना देता है. डेविएशन मतलब डिफरेंसेस. कैसे समझ लो. टेल मी, 5 जो है वो एक्चुअल एवरेज से कितना दूर है? ये जो फर्स्ट टर्म है ये एक्चुअल एवरेज से कितना दूर है बोलो? -1. राइट, -1 दूर है. अच्छा, 3 कितना दूर है 6 से? -3. 12 कितना दूर है 6 से? +6. 4 कितना दूर है 6 से? -2. Now, if you observe this positive and negative deviations, they should become 0 because 6 is the actual average of these four terms. तो ये पॉजिटिव निगेटिव जो भी डेविएशंस होते हैं एवरेज के साथ वो नलिफाई होते हैं, मतलब जीरो बन जाते हैं. ये जीरो हो रहा है क्या? इफ यू मेक द टोटल ऑफ इट, यस, -6 + 6 बिकम्स 0. यस, राइट. आप कोई भी वैल्यूज लो, कोई भी टर्म्स लो, उनका जो भी एवरेज है वो पॉजिटिव निगेटिव डेविएशंस को जीरो बना देता है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट. ये क्लियर हो रहा है? बोलो. राइट. अभी इसका हम कैसे सहारा ले सकते हैं? राइट, ये मेथड का फॉर सच क्वेश्चंस हम कैसे सहारा ले सकते हैं? टेल मी, इफ एक्चुअल एवरेज इज 87, एक्चुअल एवरेज अगर ये 4 टर्म्स का 87 है, मतलब उसके पॉजिटिव निगेटिव डिफरेंसेस जो है वो 0 होने चाहिए. सो टेल मी, 81 87 से कितना दूर है? 81 87 से कितना दूर है बोलो? -6. वेरी गुड. 93 कितना दूर है? +6. 99 कितना दूर है? +12. तो ये टर्म क्या होना चाहिए सो दैट उसका डेविएशन ये सब 0 बन जाएगा. वी ऑलरेडी हैव +6 -6, मतलब ये तो वैसे भी 0 हो जाएगा. राइट, वी हैव एक्स्ट्रा +12. दिस मीन्स दिस टर्म शुड बी -12 from the average. Right, so 87 - 12, yes, we get the value of x as 75. Understood? इतना easily हम इसको solve कर सकते हैं. Right, with this method of deviation approaches. कहाँ पे हम लोग use कर सकते हैं समझ लो.
Whenever आपको कोई टर्म से विच आर समवट क्लोज टू इच अदर, अगर क्लोज वाले कुछ टर्म से एक टर्म मिसिंग है और उनका एवरेज दिया हुआ है, तब हम ये मेथड बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं. इट विल सेव आवर टाइम. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. क्लियर हो रहा है? बोलो. क्लियर हुआ? पहला भी मेथड हमने सॉल्व किया विथ कॉन्सेप्चुअल वे, राइट, कि हमने क्या किया, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्म्स, उसका सहारा लेके वी सॉल्व दिस. एंड दिस इज अनदर वे बाय यूजिंग डेविएशंस. ओके. ओके, ट्राई दिस क्वेश्चन. वेरी इजी. दीज आर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट बूस्टर क्वेश्चंस. कॉन्सेप्ट बूस्टर क्वेश्चन बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, जस्ट टू मेक द कॉन्सेप्ट क्लियर. अरे कितना इजी क्वेश्चन, बोलो जल्दी से. वेरी गुड. If the average marks of 30 students is 26, find the total marks of the classroom. So we know average marks is equal to total marks of the students upon number of students, or average marks of the classroom into number of students is equal to total of the classroom, right? So we already know average is 26, number of students are 30, so total are 780. टोटल मार्क्स ऑफ द क्लासरूम आर 780. ठीक है, इजी था. व्हाट कैन बी आंसर ऑफ दिस? एक सेकेंड, आई जस्ट बैक. यू कैन यूज टू मेथड्स. मैं 2 मिनट में आता हूँ. सेल्स ऑफ कंपनी फॉर 4 years आर, ओ आई एम सॉरी, सेल्स ऑफ कंपनी sales of company for 4 years are this much, this much, this much, and k. If the average of the company is 434 cr, find the value of k. अभी आप वो मेथड जो अभी हमने देखा वो यूज कर सकते हो. या तो आप क्या करोगे, सम ऑफ ऑल टर्म्स इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, दैट इज 4, ये इंटू 4 करोगे, सम मिलेगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस के करके आपको के का वैल्यू मिलने वाला है फर्स्ट मेथड से. बट सेकंड मेथड जो अभी हमने देखा उसका सहारा अगर आप लेते हो तो भी एक क्वेश्चन सॉल्व होगा. कैसे कि 434 ये कितना दूर है, 439 इससे कितना दूर है, +5. 453 कितना दूर है इससे, 453 कितना दूर है बोलो. हाँ 20 नहीं 19, +19. 429 कितना दूर है इससे, -5. सो ये +5 -5 तो कैंसिल होगा. अभी अब के क्या होना चाहिए, -19 फ्रॉम एवरेज. सो -19 फ्रॉम दिस विल बी 415. दैट्स इट, राइट. इतना इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दैट सेकेंड मेथड विच वी सॉ, राइट. दिस इज ऑल्सो यूजफुल इन डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन. हाँ, डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस में भी ये काफी यूजफुल होगा ये तरीका. और वहां पे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, राइट, कि सेल्स दिया होता है कोई चार्ट में, बार चार्ट या कहीं पे सेल्स आपको मिलेगा, एवरेज कुछ मिसिंग होगा, किसी एक टर्म मिसिंग होगा, एवरेज माइट बी गिवन एंड यू विल आस्क व्हाट इज दैट स्पेसिफिक टर्म. ठीक है, क्लियर, अंडरस्टूड? बोलो, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल? यस और नो? हाँ, ठीक. सो when terms are in AP, AP मतलब
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। तो कितना इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, देखो ये लिख लो, ये पहले फॉर्मूला लिख लो। इफ टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। लिख लो इसको, कॉन्सेप्ट है ये, और इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, और कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं अच्छे से इसके ऊपर, ये भी हम देखेंगे। डन। ओके, फाइंड एवरेज ऑफ मल्टी, अच्छा व्हाट इज, सर हाँ बोलो। सर एकच मिनिट. डन सर. Okay. See, let us understand what is arithmetic progression. Say for example, मैं अगर लिखूं 5 प्लस 3 8 प्लस 3 11 प्लस 3 14 प्लस 3 17. So if you observe, the given terms are in arithmetic progression. Why? Because the common difference is constant. When common difference between the given terms is constant, we say the terms are in arithmetic progression, right? So when terms are in arithmetic progression, you can calculate average by first term plus last term divided by 2, or just the middle term, right? तो यहाँ पे तो हमें middle term भी दिख रहा है अच्छे से, which is 11. So average of the given terms will be 11 because terms are in arithmetic progression. Or first term plus last term divided by 2. First term plus last term divided by 2, which will also give us an average as 11. Clear? Clear with the formula and the question? ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ. Find the average of multiples of 12 from 19 to 127. Right? Find average of multiples of 12. Multiples of 12, but in this range. So tell me, which is the first multiple in this range? First multiple कौन सा है? Between 19 to 127 of 12. कौन सा multiple है पहला? हाँ, 24. 24. Very good. Next multiple. Next multiple is 36. Next multiple is 48, and so on. What is the last multiple in this range? Last multiple कौन सा है? 120. Very good. 120. So now if you observe, right, क्योंकि ये 12 के multiples है, what is their constant difference? What is constant difference between the given 12. terms? 12 का constant difference है. So because the terms का जो constant difference है वो constant है, we can say these are in arithmetic progression. And so when terms are in arithmetic progression, average is equal to first term plus last term, first term plus last term divided by 2, which is 144 divided by 2, which is 72. Right? So 72 average, ये आंसर बन गया अपना. Clear? Clear with this? बोलो. Yes sir. Okay. Find the average of first 20 whole numbers. Can you try this? Please try.
Very good. Find the average of first 20 whole numbers. Which is first whole number? First whole number कौन सा होगा? First whole number 0. Very good. Next whole number 1. Next is 2. Next is 3. So 20th whole number कौन सा होगा? अगर first 0 है, second is 1. So 20. 20th whole number will be, no, it is 19. 9. देखो first whole number, second, third, fourth, so this will be 20th. Yes or no? Because we are starting from 0, right? So we can observe that the common difference between the given terms is 1. So we can also say that the given terms are in arithmetic progression. When terms are in arithmetic progression, average will be first term plus last term divided by 2, which is 9.5. This is your answer. Very good. Most of the students have given the answer. Very good. First one was Kiran. Very good. Om, Rohit. Very good. Clear? Question clear है सबको बोलो. Clear है ना? Yes, sir. Tell me. Find the average of first 12 multiples of 9. Find the average of first 12 multiples of 9. So average of first 12 multiples बोल रहा है, तो first multiple of 9 is 9, second is 18, third is 27, right? So ये first multiple हुआ, ये second है, ये third है, हमें चाहिए first 12 multiples, right? So ये 9 into 3, so 9 into 12 होगा 108. So again all multiples are in arithmetic progression only. First term plus last term divided by 2. So 9 plus 108 is 117 by 2, which is 58.5, right? 58.5. Clear? Right? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट आई होप इट इज क्लियर. इसके ऊपर कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट? तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा बेसिक्स ऑफ एवरेज के एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, और एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्म्स. तो इसके ऊपर से कुछ क्वेश्चंस देखे. फिर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला देखा हमने, वो डेविएशन वाला एक टाइप देखा जो कि काफी यूजफुल रहेगा इन मोस्टली इन डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस और the simple questions on this one. Now we are going to understand one concept of allegation. उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे ऑन ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स. उसके बाद हम फिर से प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे. लेट अस अंडरस्टैंड दिस allegation which is very much useful method and easy to understand. Don't worry, right? देखो allegation हम क्या करते हैं, फॉर्मेट ऑफ allegation. यहाँ पे अब कोई क्वांटिटी का एवरेज दिया होता है, दूसरे क्वांटिटी का एवरेज है, और यहाँ पे ओवरऑल एवरेज ऑफ बोथ दिस क्वांटिटी, एंड फिर इनका क्रॉस डिफरेंस जब निकालेंगे वी विल गेट रेशियो ऑफ क्वांटिटी 1 to क्वांटिटी 2. अभी ये भी क्या है समझ लो. हम एक एग्जांपल लेते हैं, राइट? और कुछ एग्जांपल्स होंगे आगे आगे, वो भी हम करेंगे, ठीक है? देखो ये क्या होता है, अगर मैं ऐसा बोलूं कि एवरेज लेट्स से हाइट ऑफ बॉयज, अगर मैं यहाँ पे लू एवरेज हाइट ऑफ बॉयज, एवरेज हाइट ऑफ बॉयज अगर हमें दिया है कुछ 130 सेंटीमीटर्स, यहाँ पे हमें दिया है एवरेज हाइट ऑफ गर्ल्स, एवरेज हाइट ऑफ गर्ल्स अगर ये हमें दिया है
117 सेंटीमीटर्स, राइट। और हमें यहाँ पे दिया है ओवरऑल एवरेज ऑफ क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2। मतलब ये क्वांटिटी 1 क्या है यहाँ पे, बॉयज, बॉयज का एवरेज हाइट, क्वांटिटी 2 आया गर्ल्स, गर्ल्स का एवरेज हाइट। और यहाँ पे ओवरऑल एवरेज ऑफ क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2, मतलब ओवरऑल एवरेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। और द क्लासरूम, क्लासरूम का एवरेज, टोटल एवरेज हाइट भी दिया होता है ओवरऑल। लेटेस्ट से इट इज 120 सेंटीमीटर्स, राइट। ये ध्यान दो हमेशा, ये ओवरऑल वैल्यू जो रहता है ना, इट विल ऑलवेज लाई इन द रेंज दिस एंड दिस। इट कैन नेवर बी 116 और इट कैन नेवर बी 131। इससे ज्यादा भी नहीं हो सकता, इसके कम भी नहीं हो सकता, इसके बीच में कहीं भी लाई करेगा, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट विल बी रेशियो, व्हाट विल बी रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स। तो इसके लिए अलिगेशन हमें एकदम इजी आंसर देते हैं, मतलब एकदम सिंपल वे से आंसर देते हैं। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, क्रॉस डिफरेंस। व्हाट इज क्रॉस डिफरेंस ऑफ एवरेज हाइट ऑफ गर्ल्स एंड ओवरऑल एवरेज। ये क्रॉस डिफरेंस कितना है, 3। ये क्रॉस डिफरेंस कितना है, 130 120 का क्रॉस डिफरेंस 10। सो द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, द रेशियो, ये बॉयज को रिप्रेजेंट करेगा, ये गर्ल्स को। भले आप क्रॉस डिफरेंस लेते हो, लेकिन ये बॉयज को रिप्रेजेंट करेगा, ये गर्ल्स को। मतलब इफ देर आर 3 नंबर ऑफ बॉयज, there will be 10 number of girls in the classroom. If there are 30 number of boys, there will be 100 number of girls in the classroom. Are you getting this point? बोलो, ये क्लियर है? ओके, मैं रिपीट करता हूँ, देखो रिपीट करता हूँ इसको। अगर यहाँ पे मैं लू एवरेज ऑफ, एवरेज हाइट, एवरेज हाइट ऑफ बॉयज, एवरेज हाइट ऑफ बॉयज अगर मैं लू 130 सेंटीमीटर्स, राइट। और एवरेज हाइट ऑफ गर्ल्स, एवरेज हाइट ऑफ गर्ल्स 117 सेंटीमीटर्स हमने लिया। ओवरऑल एवरेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, राइट। ये ओवरऑल एवरेज भी हमें दिया हुआ है, लेट्स से 120 दिया हुआ है। सो टू कैलकुलेट रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, अगर हमें ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज, हमें ये इंफॉर्मेशन दिया है, एवरेज हाइट ऑफ बॉयज इज 130, एवरेज हाइट ऑफ गर्ल्स इज 117, overall average of boys and girls or overall average of the classroom is 120, find the ratio of boys to girls। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप सीधा क्या करोगे, ये फॉर्मेट में डालोगे, क्रॉस डिफरेंस निकालोगे। 117 120 का क्रॉस डिफरेंस 3 है, 130 120 का क्रॉस डिफरेंस 10 है। सो रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 3:10, ये आपका आंसर बने। क्लियर किरण, इज दिस क्लियर? ओके, try this question. You may find वेरी मच सिमिलर क्वेश्चन इन द टेस्ट पेपर, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ो, लिखो और सिंपल सॉल्व करो। वेरी गुड, लेट्स, वो सिंप्लीफाई होगा ना आकाश, रोहन, ये रेशियो फिर से सिंप्लीफाई होगा। किरण, वो भी तूने भी जो बोला है वो भी सिंप्लीफाई होगा आगे। दीज आर नॉट इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। लेट्स सी, एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज इन अ क्लास आर 35, एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स आर 51, if the average of whole classroom is 39, okay, find the ratio of boys to girls in the class।
लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड व्हाई वी कैन यूज अलिगेशन मेथड हियर, ये भी समझ लेते हैं। हमारे पास दो वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल्स है कौन से, एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स, और ये दोनों वेरिएबल्स का हमें ओवरऑल एवरेज भी पता है। यस वी कैन यूज अलिगेशन, दो वेरिएबल्स का कुछ एवरेज दिया हुआ है, उन दोनों का ओवरऑल भी हमें पता है, वी कैन कैलकुलेट देयर रेशियो सिंपली, ठीक है। सो एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज 35, these are average marks of boys, average marks of girls are 51, and overall average of these two variables or the classroom is 39. So what is the ratio of boys to girls? Ratio of boys to girls will be cross difference of this is 12, cross difference of this is 4, and so ये simplify okay, 4 1 this, 4 1 this, 4 3s are 12. So the ratio of boys to girls in the classroom is 3:1. If there are 3k number of boys, there will be 1k number of girls. Yes or no? तो इसमें भी आपको कोई एक्सटेंशन हो सकता है क्वेश्चन में कि if there are these many boys, how many girls are there? ऐसा भी कुछ हो सकता है। Understood? Clear? बोलो। क्लियर विद द क्वेश्चन? वो क्वेश्चन क्लियर है? अरे यार, ये क्वेश्चन क्लियर है? ओके, ट्राई दिस। देखो कैसे कैसे हम अलिगेशन का यूज करके ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। दिस लुक्स लाइक अ मिक्सचर एंड अलिगेशन क्वेश्चन बट कैन बी सॉल्व यूजिंग अलिगेशन वे। यू ट्राई इट फर्स्ट। Cost price of basmati rice is 80 per kg and that of Indrayani rice is 55 per kg. A trader mixes 8 kg of Indrayani rice with basmati rice. Okay. The average cost price of mixture then becomes rupees 60 per kg. How many kg of basmati rice is mixed with Indrayani rice? Okay. Average cost of basmati, average cost of Indrayani. ये cost price हमें दिया हुआ है of basmati 80 rupees per kg and 55 rupees per kg. Do we have overall average of both this? Do we have overall average? बोलो ओवरऑल एवरेज है कि दोनों बासमती और इंद्रायणी राइस का जो ओवरऑल एवरेज है वो कॉस्ट प्राइस है कि अपने पास? इफ दिस इज कॉस्ट प्राइस, दिस इज कॉस्ट प्राइस, दिस शुड आल्सो बी अ कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर, राइट? है कि अपने पास? है। इट इज 60 रुपीज पर केजी, राइट? सो व्हाट इज रेशियो ऑफ बासमती राइस टू इंद्रायणी राइस? क्वांटिटी का रेशियो क्या है ये मिलेगा हमें। इसका क्रॉस डिफरेंस हुआ 5, इसका क्रॉस डिफरेंस हुआ 20. So the ratio is 1:4. What does this mean? What does this mean? If बासमती राइस अगर 1 kg रहा तो इंद्रायणी राइस रहेगा 4 kg, राइट? बासमती इज टू इंद्रायणी आया 1:4. As per the question, a trader is mixing 8 kg of Indrayani rice, right? So if trader is mixing 8 kg of this, right? ये 4 parts is actually equivalent to 8, मतलब एक part will be 2, तो ये भी हो जाएगा into 2. So basmati rice has to be 2 kgs. How many kg of basmati rice is mixed? 2 kg of basmati rice should be mixed so that this would be worked out. Clear? Is the question clear to all? Bolo.
ओके ग्रेट। राइट, तो भले क्वेश्चन थोड़ा डरावना लगे, इतना इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते, राइट। आप अगर रफ पेज पे ये सॉल्व करोगे ना, रफ पेज पे व्हेन देयर इज अ काउंटडाउन टाइमर एंड ऑल, आप सीधा क्या करते हैं, बासमती राइस का कॉस्ट, इंद्रायणी राइस का कॉस्ट, ओवरऑल दोनों का कॉस्ट दिया हुआ है 60, तो एवरेज मिलेगा 520। ये आप करते हो इसके ऊपर क्या, रफ पेज के ऊपर। अगर वो इंद्रायणी राइस ले रहा है 8 केजीज, राइट, मतलब ये इंद्रायणी अगर 8 है, 4 इंटू 2 8, 1 इंटू 2 2, 2 केजी आपका आंसर होगा। सो हार्डली इट विल टेक 5 to 10 सेकेंड्स के आसपास आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, प्रोवाइडेड आप ये कॉन्सेप्ट समझते हो, प्रोवाइडेड आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हो, प्रोवाइडेड कोई डाउट्स वगैरह है तो आप पूछते हो और सॉल्यूशंस उसके देखते हो, राइट। तो ये लर्निंग प्रोसेस फॉलो करोगे तो आप कोई भी टेस्ट हो, प्लेसमेंट पेपर्स, एमबीए एंट्रेंस, व्हाटएवर, you will be very much fit to crack that specific test if you learn any topic in a very much systematic and structured way, ठीक है। Trials. Now this is actually a interest, simple interest, compound interest question, but still you can use, if I'm not wrong, you can use allegation method in this topic also. So it is not only related with averages, but आप बहुत सारे टॉपिक्स में एलिगेशन कॉन्सेप्ट का यूज करके यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। Let's do this. See, an investor invests ₹10,000 in shares and mutual funds. 10,000 वो shares and mutual fund में invest कर रहा है. Share give the returns of 16%, while mutual fund gave the return of 8%. Okay. At the end of the year, he received rupees 1,400. Find the amount invested in shares. Right. इसको भी आप कैसे allegation वे से सोच सकते हो, देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन एक्चुअली आप विदाउट एलिगेशन भी, सभी जो क्वेश्चंस है ना, ये इक्वेशन से भी कर सकते थे, इक्वेशन बेस्ड, राइट। अब ये क्वेश्चन इक्वेशन से कैसे बन सकता था, देखो, एलिगेशन से तो सबको समझा, इक्वेशन से आप ऐसे कर सकते थे कि बासमती राइस 80 पर केजी, उसने 8 केजी लिया, ठीक है, मतलब 80 रुपीज इंटू 8, राइट। ये एवरेज कॉस्ट प्राइस था इंटू नंबर ऑफ केजीज ऑफ इंद्रायणी राइस, नहीं इंद्रायणी का तो 55, एक सेकंड, ये 55 इंटू 8 प्लस बासमती का कॉस्ट प्राइस इज 80, बासमती का नंबर ऑफ केजीज वी डू नॉट नो, नंबर ऑफ केजीज हमें पता नहीं। सो दिस इज टोटल कॉस्ट ऑफ इंद्रायणी राइस, दिस इज टोटल कॉस्ट ऑफ बासमती राइस, एंड व्हाट इज ओवरऑल कॉस्ट प्राइस, ओवरऑल एवरेज इज 60, द 60 एवरेज है, नंबर ऑफ केजीज क्या होगा, 8 kgs of Indrayani, and Basmati we do not know, we have considered it as B. आप ये भी इक्वेशन सॉल्व करोगे ना तो भी B इज इक्वल टू आपको मिलने वाला है 2। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? इज दिस इक्वेशन क्लियर? मतलब दो मेथड से आप सॉल्व कर सकते थे एलिगेशन विच इज रिकमेंडेड, बट आपको इक्वेशन से भी समझना है इसको, राइट। तो आप समझ सकते हो कि एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ इंद्रायणी राइस इज 55, नंबर ऑफ केजीज ही टुक एज 8 kgs, सो दिस इज कॉस्ट ऑफ इंद्रायणी, दिस इज कॉस्ट ऑफ बासमती, एंड ये इंद्रायणी प्लस बासमती मिला के टोटल कॉस्ट प्राइस अगर निकालना है तो हमें पता है टोटल एवरेज, सबका एवरेज है 60 रुपीज पर केजी, एंड टोटल क्वांटिटी इंक्लूडिंग इंद्रायणी एंड बासमती इज 8 plus B, right? I hope everyone understood this equation as well.
समझा ये भी? बोलो। अरे समझा क्या? ओके ठीक है, राइट। अच्छा, तो ये भी क्वेश्चन मतलब अलिगेशन के सब क्वेश्चंस आपके लिए आप इक्वेशन बना सकते हो, राइट। लेकिन जहां पे आप अलिगेशन यूज कर सकते हो ना, तो वो टाइम आपका काफी सेव होने वाला है। सो मेक श्योर कि अगर अलिगेशन व्हेन यू प्रैक्टिस यू विल अंडरस्टैंड वेयर टू यूज एंड वेयर नॉट टू यूज। ठीक है। एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट ₹10,000 इन शेयर्स। तो मुझे एक बात बोलो, उसने 10,000 कुछ शेयर्स में कुछ म्यूचुअल फंड में किया, शेयर से उसको इतना रिटर्न से म्यूचुअल फंड से इतना है। ओके, शेयर्स म्यूचुअल फंड, इसमें रिटर्न मिला 16% का एंड इसमें मिला 8% का। हमारे पास ओवरऑल रिटर्न है क्या इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? हमें दिया नहीं डायरेक्टली, डायरेक्टली हमें नहीं दिया है, बट इनडायरेक्टली हमें दिया हुआ है ओवरऑल। ओवरऑल 10,000 के इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसको अगर 1400 आया है, 1400 is the return on 10,000 investment. What is this percent return? Right? 1400 is the return on this investment. What is it in percentage term? Right? So if you solve it, 100 will go out. Yes, overall return by both these investments gives him 14%. Right? Overall return is 14%. So we can calculate for shares investment, right, and mutual fund quantity or mutual fund investment. So the ratio will be, ये क्रॉस डिफरेंस होगा 6, ये क्रॉस डिफरेंस है 2, रेशियो इज 3:1, राइट। सो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, द रेशियो इज 3:1। अंडरस्टूड? रेशियो कैसे निकाला ये क्लियर है अब तक? बोलो, रेशियो कैसे निकाला क्लियर है? शेयर्स का क्वांटिटी एंड म्यूचुअल फंड का क्वांटिटी, और योर शेयर्स का इन्वेस्टमेंट एंड म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमें मिला 3:1। आई होप ये रेशियो पार्ट क्लियर है। वी विल बी मूविंग अहेड की कितना इन्वेस्टमेंट है शेयर्स में वो करेंगे। सिंपल रेशियो एंड प्रोपोर्शन बन गया अभी, ठीक है। सो शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड रेशियो मिला 3:1। मतलब क्या? इफ ही इन्वेस्ट 3 रुपीज हियर, ही विल इन्वेस्ट 1 रुपी हियर, और इफ ही इन्वेस्ट 3x रुपीज हियर, ही विल इन्वेस्ट k rupees in mutual fund. दोनों मिला के ही इन्वेस्टेड 10,000। 4k is 10,000, k is 2,500, k is 2,500। ये x है, ये अगर 3x है तो ये x है ना, तो x is equal to 2,500। तो हमें पूछा क्या है? शेयर्स का इन्वेस्ट, शेयर्स का इन्वेस्टमेंट होगा 2,500 into 3, that is 75। अंडरस्टूड? इज दिस क्लियर? बोलो। सर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वर पण तुम्ही घेणार आहे का? हो, तो पण टॉपिक कव्हर होणार। ओके That topic will also be covered, simple interest and compound interest, don't worry. But I hope this is clear. ये particularly allegation concept के लिए clear है अभी? ठीक है। So concept booster questions करेंगे हम लोग, right? तो आपका ये clarity और बढ़ेगा on whatever concepts we have covered till now, right? In this session, right? पहला क्वेश्चन आपके सामने options भी है। Tell me what will be your answer. Very good, Shoaib, very good. बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट। द एवरेज एज ऑफ 7 मेंबर्स ऑफ पटेल्स फैमिली इज 25 years. द एवरेज एज ऑफ द सेम फैमिली 3 years old. ओके, देखो 7 मेंबर्स का 25 ईयर है। आप देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर्स का एवरेज जब बोल रहे हैं ना 25-25 है, राइट। इफेक्टिवली यू कैन टेक दिस, भले ये अलग अलग हुआ उनका एज, लेकिन टेक्निकली यू कैन अज्यूम कि एवरेज ऑफ ऑल 7 मेंबर्स इज 25 पर हेड एवरेज है ना, तो यू कैन टेक्निकली अज्यूम दिस, यू कैन टेक्निकली अज्यूम दिस। एंड 3 साल पहले, 3 साल पहले ये भी 22 का होगा, ये भी 22 का, ये भी 22 का, ये भी 22 का, राइट, ऐसा आप बोल सकते हो। एंड सो 3 years बिफोर द एवरेज मस्ट हैव बीन
22 years, राइट। तो जब भी आपको ये दिया है कि अभी प्रेजेंट एवरेज 25 या कुछ भी, प्रेजेंट एवरेज अगर इतना है तो 3 साल पहले वो एवरेज होगा 25 - 3, तो सिंपली 22। 3 साल बाद +3 करोगे 28 होगा, 3 साल बाद, सातों मेंबर्स। क्लियर विद दिस? क्लियर विद दिस बोलो। यस प्रसाद, एक सेकंड। नहीं वो तो गया ना रे, वो शायद नहीं आएगा, वो एलिगेशन जो किया इसका ही ले लो। ट्राई दिस। वेरी सिंपल क्वेश्चन। वेरी गुड। द सैलरी ऑफ, ये 5 लोगों का सैलरी दिया हुआ है, दिस एवरेज सैलरी ऑफ इनकम, राइट। तो आप 8 + 5 13, 13 + 11 24, 24 + 7 31, 31 + 9 40। सो 40 डिवाइड बाय 5 मेंबर्स 8 आएगा ना? संग्राम, इट वुड बी 8,000, नॉट 8,500। टोटल 40 हो रहा है, 40,000 हो रहा है, 40,000 डिवाइड बाय 5 8,000 आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। ट्राई दिस। The average salary of AB is rupees 6,000, and that of C and CD is 8,000. The average salary of all 5 people. Now see, when you want average salary of all 5 people, you must have sum of all 5 people upon number of people, which is 5. राइट, ये चीजें आपको चाहिए। सम ऑफ ऑल 5 कैसे निकल सकते हैं? सम ऑफ ऑल 5, ये दो लोगों का टोटल कितना है? इफ एवरेज ऑफ 2 people is 6,000, टोटल विल बी 6 × 2, ये 12,000 होगा दोनों का। तीनों का एवरेज अगर 8,000 है, मतलब तीनों का टोटल होगा 24,000, ये सैलरी होगा इनका तीनों का। तो टोटल 5 लोगों का सैलरी हो गया 36,000। यस और नो? सो सम ऑफ ऑल 5 people इज 36,000 अपॉन नंबर ऑफ पीपल, दिस गिव्स अस 7,200। क्लियर? क्लियर? बोलो। ठीक है, इजी था, एकदम इजी था। आई होप दिस इज क्लियर। किसी को फिर भी क्वेरी तो प्लीज आस्क, ना, डू नॉट हेजिटेट। अगला क्वेश्चन।
Let's see. The average age of ABCD is 40 years. The average age of A and B is 35 years. And the average age of C and D is 42 years. Okay. Average of A and B is, अच्छा 5 लोगों का एवरेज दिया 40, 5 लोगों का एवरेज 40 है, मतलब 5 लोगों का टोटल होगा 200। 2 लोगों का ए एंड बी का एवरेज है 35, मतलब इनका टोटल होगा 70। ये सी और डी का टोटल होगा इंटू 2 मतलब 84। 5 लोगों का टोटल पता है, उसमें से हमें 4 का भी टोटल मिल गया, तो हम ई का निकाल सकते हैं। यस, तो ये 4 का टोटल इतना हो गया, 4 154, राइट। अगर 5 लोगों का टोटल 200 है, उसमें से 4 का 154 है, मतलब ई का टोटल होगा 46। 46 होगा ई का टोटल। ठीक है, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड बोलो। ओके, ट्राई दिस। वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 79 नेचुरल नंबर्स? फर्स्ट नेचुरल नंबर 1, सेकंड इज 2, थर्ड and first 79 bola, last natural number is 79. We can see the common difference is constant. The given terms are in arithmetic progression, so the average will be first term plus last term divided by 2, which is 80 by 2, which is 40, right? We saw that concept of averages when terms are in arithmetic progression. Understood? Clear everyone? Yes, sir. Okay. ये कॉन्सेप्ट बूस्टर क्वेश्चन मैंने ऐसे डिजाइन किया ना, तो आपका कॉन्सेप्ट जो भी हुआ है ना, वो पढ़ा ना भी, वो अच्छे से क्लैरिटी आता है उसको। वेरी गुड शोएब, लेट्स सी। इन व्हाट proportion must tea at rupees 62 per kg be mixed with a tea rupees 72 per kg in order to obtain a mixture worth rupees 65 per kg? So T1 का एवरेज कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 62, T2 का एवरेज कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 72, and if I mix them, the average cost price of both the teas T is 65, right? So what is a ratio of these quantities, right? So इसका क्रॉस डिफरेंस आएगा 7, इसका क्रॉस डिफरेंस है 3। So the ratio of T1, quantity of T1 with quantity of T2 is 7:3, right? Using concept of alligation. कहाँ पे यूज करते हैं concept of alligation? फिर से मैं एक रिमाइंड करता हूँ आपको। जब हमारे पास दो वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल्स का कुछ हमें पैरामीटर दिया हुआ है, मतलब एवरेज कॉस्ट, और उन्हीं दो वेरिएबल्स का ओवरऑल एवरेज ही वही वही पैरामीटर दिया, मतलब एवरेज कॉस्ट ही दिया है। एवरेज सेलिंग प्राइस ने, एवरेज प्रॉफिट नहीं। ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, तो ये भी कॉस्ट। ये सेल्स प्राइस, ये सेल्स प्राइस, तो ये भी सेल्स प्राइस होना चाहिए। ये प्रॉफिट, तो ये भी प्रॉफिट। ये परसेंट रिटर्न, तो ये भी परसेंट रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, ये सेंटीमीटर 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 होना चाहिए। तो दो वेरिएबल्स दिए हुए, उनका एवरेज ओवरऑल कुछ दिया हुआ है, वी कैन कैलकुलेट देयर रेशियोज यूजिंग अलिगेशन। समझ रहा है? धीरे धीरे क्लियर हो रहा है चीजें? ठीक है, ट्राई दिस। कंबाइंड ऐसा होना चाहिए, कंबाइंड।
डी। Let's see. The average of test course of class M students is 70 and that of N students is 91. When the scores of both the classes are combined, the average is 80. Okay. M का एवरेज टेस्ट स्कोर 70 दिया हुआ है, N स्टूडेंट्स का एवरेज टेस्ट स्कोर 91 दिया हुआ है, ओवरऑल एवरेज दोनों का दिया हुआ है 80, क्रॉस डिफरेंस 11, क्रॉस डिफरेंस 10, so it is 11:10 or 11/10. This is the answer. ठीक है, ऑप्शन ए आ रहा है। अच्छा, n by m बोला है, सॉरी n by m बोला है ना, n by m, ये n represents this, m represents this, and so it is 10/11. Option D will be the right choice. Clear? n upon m बोला है इसलिए, is this clear? ठीक है, प्रैक्टिस बूस्टर, इसके ऊपर थोड़े अच्छे खासे क्वेश्चंस अभी, राइट, जो आपको थोड़ा फील कराएगा कि हम कुछ अच्छा खासा पढ़ रहे हैं। ठीक है, ट्राई दिस क्वेश्चन। Very good, Om. Very good. Let's see if it is right. देखो अभी आप कैसे सोचोगे, देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, मतलब शुरुआत कैसे करना ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अभी अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे कि बैट्समैन हैज अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर 14 इनिंग्स, सो 14 इनिंग का कुछ तो भी नंबर ऑफ रन्स है उसके। ठीक है, हमें उसका पता नहीं एवरेज क्या है, राइट, इसका एवरेज सर्टेन एवरेज बोला है। लेट अस सी कि उसका एवरेज ऑफ 14 इनिंग्स अगर मैं एक्स लेता हूँ, ठीक है, 14 इनिंग्स तक का एवरेज हमने एक्स लिया, ओके, तो टोटल क्या होगा, बोलो, टोटल ऑफ 14 इनिंग्स क्या होगा? कैन आई से नंबर ऑफ टर्म्स इनटू एवरेज विल बी टोटल ऑफ 14 इनिंग्स। ये क्लियर है, ये क्लियर है, ओके। नाउ ही स्कोर 72 रन्स इन द 15th इनिंग, मतलब पहले उसके इतने रन्स थे, अभी ही स्कोर्ड 72 runs in the 15th innings. So can I say this is total runs of 15 innings, right? And thus his average increased by 2. Now 15 इनिंग के बाद वाला एवरेज मैं कैसे लिख सकता हूं, बोलो? 15 इनिंग के बाद वाला एवरेज, 15 इनिंग्स के बाद वाला एवरेज मैं कैसे लिख सकता हूं? 14 इनिंग्स तक एक्स था, नाउ द एवरेज गॉट इंक्रीज्ड बाय 2, मतलब 15 इनिंग्स के बाद जब कैलकुलेशन हुआ, द एवरेज गॉट इंक्रीज टू x plus 2. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर, बोलो? ये 15 इनिंग्स के बाद वाला एवरेज है। नाउ टोटल ऑफ 15 इनिंग्स, टोटल ऑफ 15 इनिंग्स कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड दिस वे कि नंबर ऑफ इनिंग्स 15 है और उनका एवरेज इज x plus 1। और आप ये इक्वेशन ऐसे भी सोच सकते हो, इफ नॉट दिस, आप ये इक्वेशन ऐसे भी सोच सकते हो कि 15 इनिंग्स का टोटल इज दिस, इफ आई डिवाइड दिस बाय 15 आई विल गेट एवरेज ऑफ 15 इनिंग्स विच इज x plus 2। यस और नो? 15 इनिंग्स का टोटल इज दिस, if I divide it by number of innings, I'll get average after 15 innings, which is x plus 2.
इज दिस इक्वेशन क्लियर? ये दोनों सेम ही है, देखो ये उधर जाके फिर अभी क्या होगा, ये 15 उधर जाएगा, 14x प्लस 72 इज इक्वल टू 15x प्लस, दोनों सेम ही है, डोंट वरी। इज दिस क्लियर? बोलो, ये क्लियर है सबको? तो ये 15x होगा, 14x उधर जाएगा, x बनेगा 15 इंटू टू 30, 72 में से 30 गया, 72 में से 30 गया, 30 गया, कितना बचेगा? 42, 42 विल बी योर आंसर। यस यस यस, वेरी गुड। अंडरस्टूड एवरीवन? बोलो, ये क्लियर है सबको क्वेश्चन? देखो देखो हमने क्या किया, अ बैट्समैन हैज अ सर्टेन, यस आई एम रिपीटिंग इट, शोएब एंड प्रसाद। A batsman has a certain average of runs for 14 innings. We do not know what is his average. So average of 14 innings, let's say X. So total runs of 14 innings will be 14X. Now he scored 72 runs in the 15 innings. मतलब total of 15 runs, 15 innings अगर मुझे चाहिए तो 14 innings तक उसके runs थे 14X. Now he scored 72 runs. ये 15 innings के total runs हो गए. If I divide it by 15, I'll get average of 15 innings. Yes or no, Prasad and Shoaib? Is this clear? ये point clear है? Okay, right. Total runs of 15 innings. Total runs of 15 innings upon number of innings are 15. This is average of 15 innings. We can also calculate average. And average of 15 innings is also given to us. मतलब क्या बोला उन्होंने? Thus, his average increased by 2. उसका 14 innings तक का एवरेज x हमने कंसिडर किया था. Now the average got increased by 2. So yes yes, हाँ सागर, yes. So ये x plus 2 आएगा, right? Average after 15 innings will be x plus 2. This is what equation is. ये 15 में उधर लेके जाऊंगा, 15 into x plus 2 बनेगा, wherein I'll get x का value as 42. Is this clear, Shoaib and Prasad? Is this clear? राइट ये x क्या है अपना, 14 इनिंग्स का एवरेज है, 14 इनिंग्स का एवरेज x है, ठीक है. हमें बोला है फाइंड एवरेज आफ्टर 15 इनिंग्स, 15 इनिंग्स का एवरेज तो x प्लस 2 है विच इज 44. हाँ यस, वेरी गुड सागर. x तो हमारा 14 इनिंग्स तक का एवरेज है, 15 इनिंग्स का पूछा है, सो x प्लस 2 आएगा विच इज 44. अंडरस्टूड? इज दिस क्लियर? बोलो. Okay, great. Try this. Prasad, I hope the question was clear to you. Very good, Om. Very good. Very good, Sagar. Let's see. Uh, let's see. The average of x1, x2, and x3 is 14. Twice the sum of x2 and x3 is 30. What is the value of x1? Okay. अच्छा मुझे एक बात बोलो, तीन लोगों का टोटल 14 है, राइट? तो तीन चीजों का 14 टोटल है, मतलब 14 एवरेज है, मतलब टोटल होगा 14 इंटू 3 42. ओके, ये तीन का टोटल मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3
इनका टोटल आ गया 14। ओके, क्योंकि एवरेज तीनों का 14 दिया हुआ। ट्वाइस द सम ऑफ x2 एंड x3, ट्वाइस द सम ऑफ x2 एंड x3 मतलब इसका डबल करोगे द टोटल इज 30। मतलब इनका इफेक्टिव टोटल क्या है, x2 प्लस x3 का टोटल क्या है, 15 है। तो ये दोनों का टोटल इफेक्टिवली 15 है। तो हो गया आपका आंसर। तो ये x1 का टोटल आ जाएगा 42 माइनस 15 विच इज 27। क्लियर? क्लियर बोलो। यस सर। ओके, अरे अरे क्या हुआ इसको, बैटरी सेवर ऑन। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल, स्क्रीन विजिबल है सबको? Let's see. The average age of 45 students in a class in 30 years in a class is 13 years. 15 new students with an average age of 18 years join the class. What is the average age of all the students in the class? Okay. The average age of 45 students in a class is 13 years. What is total? ये total मिलेगा 15 new students with an average age of 18 years join the class. What is the average of all the students in the class? Very easy question. See, 45 स्टूडेंट्स का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एवरेज इज 13, ये टोटल मिलेगा, प्लस 15 न्यू स्टूडेंट्स ऐड हो गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 14 जिनका एवरेज इज 18, ये आ गए अपने साथ। तो इसका टोटल मिलेगा, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास। पहले तो टोटल निकालेंगे, टोटल कितना हो रहा है इनका बोलो, टोटल कितना हो रहा है 13 5 65 585 प्लस इनका 270, so total is 855, टोटल इज 855, लेकिन हमें टोटल नहीं बोला है, हमें बोला एवरेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास नाउ? 45 प्लस 15, वी हैव टोटल 60 स्टूडेंट्स 60। इन द क्लास। 60 स्टूडेंट का एवरेज चाहिए, तो आप क्या करोगे, 5 12 5 1 बचा 3, 5 7 5 1, राइट। तो 12 से डिवाइड करो 171, 12 1 12 बचा 5 51 हुआ, 12 4 जा 48 बचा 3, 12 2 is 24, so 14.2 something, option B is the right choice. Clear? इसको क्वेश्चन पढ़ो अगेन, try to understand the solution and tell me if you have any query. Clear बोलो। ओके, चलते हैं।
Sagar, very good. Let's see. The average salary of entire staff in an office is 200 per day. The average salary of entire staff in an office is 200. Okay. The average salary of officers is 550 and that of non-officers is 120. अच्छा अभी यहाँ पे हमें दो वेरिएबल से ऑफिसर्स नॉन ऑफिसर्स ऑफिसर्स का एवरेज सैलरी पता है नॉन ऑफिसर्स का एवरेज सैलरी पता है और पूरे स्टाफ का भी एवरेज सैलरी पता है we can get the ratio of number of officers to number of non-officers. Yes or no? स्ट्रक्चर क्लियर है क्वेश्चन का कि ऑफिसर्स का एवरेज पता है नॉन ऑफिसर्स का एवरेज पता है पूरे स्टाफ का एवरेज पता है तो हम लोग ऑफिसर्स और नॉन ऑफिसर्स का रेशियो निकल सकते हैं क्रॉस डिफरेंस हुआ 80 क्रॉस डिफरेंस हुआ 0.5 और ये 350 जीरो गया जीरो गया रेशियो इज 8:35 officers to non-officers ka ratio is 8:35. That means if there are 8 officers, there will be 35 non-officers. As per the question, the number of officers is 16. So if this value is equivalent to 16, मतलब ये into 2 हुआ, तो ये भी into 2 होके, your non-officers will be 70. Understood the essence of allegation technique? Clear है सबको? ठीक है, ओके, चल जाए. The average temperature of Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday was 38 degrees. Okay, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. 4 दिन का एवरेज अगर इतना है मतलब 4 दिन का टोटल कितना होगा देखो जब भी आप ये ऐसे मल्टीप्लीकेशन करते हो ना 38 into 4 और समथिंग तो आप सीधा मेंटली भी इसको कर सकते हो कैसे ये 40 थोड़ी देर के लिए कंसिडर करो ये एक्चुअली -2 है फ्रॉम 40 लेकिन 40 into 4 होता है 160 -2 into 4 होता है -8 मतलब आपका टोटल होगा 150 आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस इसका टोटल इज 150 ये मतलब पेन पेपर की जरूरत नहीं है देख लो 30 into 4 करना है तो 40 into 4 160 -2 into 4 -8 तो 160 -8 होता है 152 ये टोटल होगा 4 दिन का ओके एवरेज ऑफ ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे वाज 40 मतलब इंटू 4 करोगे 160 आ रहा है इसका अच्छा इसमें कॉमन क्या है ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ये तो कॉमन ही है उसमें मंडे और फ्राइडे की वजह से फर्क पड़ा है ओके if the temperature on Monday was 30 degrees, if it is 30 degrees here. अच्छा मुझे एक बात बोलो अगर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कॉमन है ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कॉमन है ओनली डिफरेंस इज ऑफ मंडे एंड फ्राइडे उसकी वजह से टोटल में कितना डिफरेंस हुआ +8 का डिफरेंस हुआ +8 का डिफरेंस हुआ राइट मतलब फ्राइडे का टेम्परेचर मस्ट बी +8 फ्रॉम मंडे I hope you are understanding this point. Is this clear? Is this clear? Karan, it is 38, not 48. Is this clear? Bolo. Right. So it is 38 degrees. 38 degrees Celsius. Clear? Okay. So let us take this question. A man whose bowling average is 12.4 takes. What is bowling average? Tell me. Do you know what is bowling average of a bowler?
किसी बॉलर का बॉलिंग एवरेज क्या होता है? रन्स रन्स कंसीडर्ड अगेंस्ट हिम और रन्स गिवन बाय हिम, यू कैन से रन्स गिवन बाय हिम और हर व्हाटएवर अपॉन नंबर ऑफ विकेट्स। नंबर ऑफ विकेट्स ये होता है किसी का बॉलिंग एवरेज, ठीक है। अ मैन हुज बॉलिंग एवरेज इज 12.4, इसका ये भी मतलब होता है नंबर ऑफ रन्स पर विकेट। तो वो 12.4 रन देता है हर एक विकेट के लिए, ऐसा उसका बॉलिंग एवरेज। टेक्स 5 विकेट्स फॉर 26 runs, thereby decreases his average by 0.4. The number of wickets taken by him before the last match is, let us see. A man whose bowling average is 12.4 takes 5 wickets for, अच्छा उसका टोटल विकेट्स हमारे पास नहीं है, विकेट्स हमारे पास नहीं है। क्या कर सकते हैं इसको बोलो? ठीक है, देखो ऐसा कर सकते हैं कि यू नो बॉलिंग एवरेज इज इक्वल टू दिस, बॉलिंग एवरेज हमारे पास है 12.4, रन्स वी डू नॉट नो, नंबर ऑफ विकेट्स वी डू नॉट नो, ठीक है। तो नेक्स्ट मैच में उसने क्या किया, नेक्स्ट मैच में अभी उसके रन्स कितने हो गए, सॉरी अभी उसके रन्स कितने हो गए, उसने 26 रन्स दिए और विकेट्स कितने लिए, 5, मतलब विकेट्स बन गए इतने, राइट, विकेट्स इतने, रन्स इतने। अभी उसका एवरेज कितना हुआ, द एवरेज गॉट डिक्रीजेस बाय 0.4, मतलब एवरेज हुआ 12। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। आर यू गेटिंग दिस, बोलो ये क्लियर है? तो आप या तो आर का वैल्यू डालोगे, डब्ल्यू का वैल्यू कुछ भी, मतलब आर इज इक्वल टू 12.4 डब्ल्यू, अगर आप इधर डालोगे 12.4 डब्ल्यू, राइट, यू कैन सॉल्व फॉर डब्ल्यू and you will get the answer something like 85 or something, ठीक है, क्लियर? देखो सॉल्व करते हैं, देखो ये 12.4 डब्ल्यू, ये 12, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 12 डब्ल्यू, ये स्टेप आएगा 12 डब्ल्यू प्लस 12 इंटू 5 60 इज इक्वल टू आर का वैल्यू 12.4 डब्ल्यू प्लस 26, ठीक है। तो ये 12 डब्ल्यू उधर जाएगा तो 0.4 डब्ल्यू होगा, ये 60 में से 26 गया तो 34 होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 170, जो लो हो गया। नहीं 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 एक मिनट, 340/4, 4832 बचा दो, यस 4/20, ये 85, डब्ल्यू इज 85। व्हाट इज डब्ल्यू? डब्ल्यू इज नथिंग बट नंबर ऑफ विकेट्स, राइट, नंबर ऑफ विकेट्स टेकन टिल द लास्ट मैच, विच इज दिस। क्लियर? क्लियर विद द क्वेश्चन, बोलो, राइट, ओके। सो आई होप यू आर बिल्डिंग द नॉलेज ऑन एवरेजेस टॉपिक, राइट। इसके ऊपर क्विज भी है, इन योर कोर्स डैशबोर्ड आपको क्विज भी दिया हुआ है, वो सॉल्व करो। आई होप यू हैव गिवन द टेस्ट ऑफ percentages also, BOD mass also, and ratio and proportion also. Now today we have covered averages and delegation, give the test on this, right, improvise yourself, थोड़ा बहुत आपको टाइम देना पड़ेगा इसको, राइट, और थोड़ी दिनों के बाद यू विल बी यू नो अपीयरिंग फॉर अ जॉब टेस्ट और वट एवर टेस्ट यू आर प्लानिंग फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड वी आर ending the session today, we'll meet tomorrow at 7 p.m. मोस्ट वेलकम, ओम मोस्ट वेलकम, ठीक है। सर वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना था, क्या? व्हाट्सएप ग्रुप, सॉरी, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना था सर। तू व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है ऐसा? नहीं, तो आया कैसे इधर? फ्रेंड ने भेजी थी लिंक इसलिए। अच्छा, तो इसको लिंक उससे फ्रेंड से लिंक लो ना, ठीक अभी है। उसका लिंक है ना मेरे पास, मतलब वो बहुत टाइम पास करना पड़ेगा।
अच्छा एक काम ठीक। करो ना, तुम हाँ। हो ना उधर, ये इस पे देखो, इसी कोर्स पेज, ये कोर्स पेज जो है ना, उसके ऊपर जो पीडीएफ है, उसमें मैंने हम्म। व्हाट्सएप में डाले, वो पीडीएफ पहला ही फाइल है पीडीएफ का, हाँ ठीक है ठीक है। उसमें देखो।